Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class. I am teaching you chapter number 1. Name of the chapter is organ system. Name of the chapter is organ system. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video I explained you about mouth. Is it clear? So mouth consists of teeth, salivary glands, and tongue. Okay, so mouth consists of teeth, salivary glands, and tongue. So where are salivary glands are found? Salivary glands are found in the mouth, and it secretes saliva. Is it clear? And when we are talking about the teeth, so we have two sets of teeth. ठीक है, one is known as milk teeth which falls after few years, and another set of teeth is known as permanent teeth. Is it clear? We have two sets of teeth, that is, one is known as milk teeth which fall after few years, and after that milk teeth is replaced by another set of teeth that is known as permanent teeth. And total number of teeth in human mouth is 32. 16 on the upper jaw, 16 at the bottom jaw. Is it clear? And after that we discussed how many types of teeth. So we have 4 types. 4 types of teeth. After that we discuss the types of teeth, that is, we have 4 types of teeth. Okay, incisors, canines, premolar, and molar. Okay, premolar and molars. So now see, incisor, canines, premolar, and molar. These are the 4 types of teeth. These are 4 types of teeth, that is incisors, canines, premolar, and molars. Okay, now, and what are the function of these teeth? We have already discussed in the previous video. If you want to, आज तो मैं सिर्फ इसकी रिकैप्चुलेशन करा रहा हूँ. अगर आप इसको डिटेल में अगर आपको फिर से देखना है, देन यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो. ओके, सो इंसिजर, ये फ्रंट वाले टीथ है आपके जो फूड को कट करने के काम में आते हैं. इन द साइड ऑफ ए इंसिजर you have canines,
or these are 8 in number, 4 on top and 4 on bottom, canines. 4 in number, 2 on either side of the canines or either sides of the incisors. और एक क्वेश्चन एग्जाम में मैंने कल भी बताया था, इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन, देयर इज वन क्वेश्चन विच इज द शार्पेस्ट टीथ इन आवर माउथ, दैट इज कैनाइन्स. कैनाइन इज द शार्पेस्ट टीथ, सबसे शार्पेस्ट टीथ जो होता है माउथ का, दैट इज द कैनाइन्स. इज इट क्लियर? सो इतनी चीजें हमने क्या की, कल ऑलरेडी डिस्कस की थी. ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ नेक्स्ट विच वी हैव टू डिस्कस, दैट इज द in the mouth. Teeth we have already discussed. Now let's discuss about tongue. Okay, so what role play by the tongue? Tongue help in speaking, liking, licking, speaking, licking, tasting, mixing food, our food with saliva in the mouth. Okay, so what important role played by our tongue is, with the tongue help us to, the tongue help, the tongue helps, the tongue helps us in speaking, the tongue helps us in speaking, licking, mixing, food, mixing food with saliva. So very important role is played by our tongue. Very important role is played by our tongue. Okay, the tongue help us in speak. So tongue, when we speak, so the tongue also, teeth में भी बताया था, it also help us to speak, and the tongue also help us to speak, listening, mixing of food with saliva. When you eat the food, it's okay. When you eat the food, with the help of the food, teeth, the food is break into small pieces with the help of the teeth. And what is the role of the tongue? Tongue mixes saliva, ठीक है, tongue mixes saliva with the food, ठीक है, क्योंकि सलाइवा कहाँ से मिलता है, सलेवरी ग्लैंड से. तो टंग का क्या रोल होता है, वो फूड को सलाइवा के संग मिक्स करने का काम भी करती है, ठीक है. सो दैट इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द टंग. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट and tongue is also our sense organ. Tongue is also known our sense organ. So we have different taste buds. So we have different taste buds on our tongue.
Is it clear? We have different taste buds on our tongue because because tongue is a sense organ. With the help of the tongue, we are able to taste the food. फूड का क्या टेस्ट है इसका पता हमको किससे चलता है? इसका पता हमें टंग से चलता है. तो विद द हेल्प ऑफ द टंग वी टेस्ट द फूड. विद द हेल्प ऑफ ए टंग वी टेस्ट द फूड. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग. फॉर एग्जाम्पल sweet. So when you eat the food, then how you come to know the food which you are eating that is sweet? मतलब उसका टेस्ट कैसा है? मीठा है. स्वीट मतलब मीठा. अगर आप फूड खाते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि फूड का टेस्ट क्या है? मीठा है. तो इसका पता किससे चलता है? क्योंकि टीथ पे डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. सो sweet, what are the different taste buds on our tongue? That is sweet, sour, खट्टा. ठीक है. जैसे आप कोई भी चीज खाते हो तो आपको कैसे लगता है कि बहुत खट्टी है चीज. ठीक है. तो उसका पता सोर से चलता है. ठीक है. सोर टेस्ट बड. साल्टी, salty and bitter. So these are the four different taste buds. These are the four different taste buds on our tongue. That is sweet, sour, salty and bitter. Sweet मतलब मीठा. Sour means आपको इससे ये पता चलता है कि फूड में खट्टा है. टेस्ट कैसा है? खट्टा है. कोई चीज को अगर आप खाते हो तो. इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट है साल्टी. ठीक है. फूड में नमक का किससे पता चलता है? जिस टेस्ट बर्ड से पता चलता है उसको हम लोग कहते हैं साल्टी. ठीक है. फिर है बिटर. इट मीन्स कोई चीज हम खाए और हमें बहुत कड़वी लगती है खाने में. ठीक है. तो ये डिफरेंस टेस्ट बर्ड होते हैं हमारे टंग से. एंड दीज टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द टंग एंड दीज टेस्ट बर्ड टेल अस which type of what type of the taste is of the food. So or you can say also that different taste of the food we are able to recognize with the help of these taste buds. That is sweet, sour, salty and bitter. Next after this माउथ में माउथ कंसिस्ट्स ऑफ टीथ, टंग. दीज बोथ आई हैव डिस्कस और एक्सप्लेन टू यू what important role play by our teeth and after that what is the function of our tongue. Now the next which is salivary glands. This third one is salivary glands. Now what is the role of these salivary glands? See, saliva. Okay. So student, the liquid, you observe that some liquid is always inside our mouth. आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे माउथ के अंदर क्या लिक्विड है. ठीक है. So what is this? This is saliva. The liquid which is present inside our mouth, that is known as saliva. Now the question arises, from where this saliva comes into our mouth. So what is the answer? Answer is salivary glands. Now another question arises,
where these glands are present. There is a liquid in our mouth. That liquid is known as saliva. So after that, there is one question arises, from where we are getting these saliva. So the answer is, we are getting this saliva from the salivary glands. Now from the same, another question arises, where these salivary glands are present. So student, the answer is, these salivary glands are present in the mouth. ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा? दे आर प्रेजेंट इन द माउथ. सो अब देखो लॉजिकली पढ़ोगे, हर चीज के पीछे कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप करो. कोई भी चीज के तो देयर शुड बी सम रीजन फॉर दैट. जैसे मैंने स्टार्ट किया, देयर इज अ लिक्विड इन द माउथ, दैट इज सलाइवा. फिर दूसरा क्वेश्चन उसी से अराइज हुआ, फ्रॉम वेयर टू गेट द सलाइवा? टू गेट द सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स. थर्ड क्वेश्चन अराइज हुआ कि वेयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. तो उसका आंसर आया, सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अराइज हुआ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सलाइवा? व्हाई वी रिक्वायर्ड सलाइवा इन आवर माउथ? क्या फंक्शन है, क्यों सलाइवा हमारे माउथ में होना चाहिए? ठीक है. सो अब इसका आंसर हुआ, सलाइवा इज रिक्वायर्ड इन द माउथ बिकॉज the process of digestion starts from the mouth. When we eat anything, so with the help of your teeth, the food break down into smaller pieces. So when these saliva mix with these food pieces, then it make it soft. वो उसको क्या कर देता है, बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है. ठीक है. और इसकी मिक्सिंग का काम कौन करता है? हाउ द फूड इज मिक्स विद द सलाइवा? द फूड इज मिक्स विद द सलाइवा विद द हेल्प ऑफ द टंग. टंग करती है मिक्सिंग का काम. ठीक है. तो वो एक सॉफ्ट, जब देखो वेट हो जाएगा, ठीक है, वो गीला हो जाना. जैसे मुंह में फूड है, सलाइवा से जब टच में फूड के पीसेस आएंगे तो वो गीले हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है. बिकॉज वी नो डैट आफ्टर सम टाइम व्हेन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, देन वी सॉलो इट थ्रू. ये हमारे किस में चला जाता है? फूड पाइप में. ठीक है. अगर फूड हार्ड होगा तो हाउ इट मूव्स इन द फूड पाइप. सो टू मेक द फूड सॉफ्ट, saliva is required. Otherwise it is not possible that the food moves easily in the food pipe. नहीं तो हमें बहुत पेन होगी अगर ये हार्ड होगा. तो बिल्कुल इसको सॉफ्ट करने के लिए, that is the reason saliva is required. And this saliva is we are getting from the salivary glands, and these salivary glands are present in our mouth. So this is complete. Up to this is complete. Now next point which is given in your book is, now the food goes down in the food pipe. फूड पाइप भी आप बोल सकते हो और इजोफेगस भी इसे बोल सकते हो. ठीक है. बोथ द थिंग्स आर सेम. नाउ स्लोली व्हाट हैपन? द सेमी सॉलिड फूड passes थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब, एंड दिस ट्यूब, सेमी सॉलिड फूड passes to a long tube. ठीक है. सेमी सॉलिड फूड passes to a long tube
and this tube is known as food pipe, and this tube is known as, इसे क्या बोलते हैं हम, फूड पाइप। इजोफेगस में लिखोगे तो भी राइट है, बोथ द आंसर इज राइट। नाउ व्हाट इज द रोल प्लेड बाय दिस फूड पाइप? ठीक है, व्हाट इज द रोल? अब फूड पाइप लगी है, क्या रोल है इसका? द रोल इज दैट दिस फूड पाइप इज फ्रॉम द फूड पाइप द food is slowly pushed into a stomach because food pipe is connected to the stomach। ठीक है, अब ये जो फूड पाइप है ये किससे कनेक्टेड है? स्टमक से कनेक्टेड है। तो इट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल दैट फ्रॉम दिस फूड पाइप द फूड गोज इनटू द स्टमक। ठीक है, अब नेक्स्ट thing which is given in the book is stomach। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। stomach, okay, now what is this? it is a bag like structure। stomach क्या है? ये bag like structure है, and from the food pipe the food enters into the stomach। if someone or if it is asked in the examination the food which we eat, जो खाना हम खाते हैं, so that food सबसे ज्यादा वो फूड हमारा कहाँ पे स्टोर होता है? तो आंसर इज स्टमक। ठीक है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, ठीक है, डाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड जो हो रहा है, सो फॉर मैक्सिमम टाइम वेयर द फूड इज स्टोर, सो मैक्सिमम टाइम 3 to 4 hours, 3 to 4 hours food remains in the stomach। now what happen in the stomach? in stomach secrete digestive juices। these juices break the food again into a simpler form। क्योंकि देखो बेटा, फूड में से हमें क्या निकालने हैं? न्यूट्रेंट्स, जो फूड वाले चैप्टर में आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, vitamins and mineral, these are the nutrients and we have to absorb these nutrients from the food। क्योंकि ये न्यूट्रेंट किसमें बाद में अब्सॉर्ब हो जाएंगे? इन आवर ब्लड। ठीक है, तो इसलिए दैट इज द रीजन फूड को स्मॉल एंड स्मॉल मोर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जाते हैं। ये रीजन है कि लास्ट में उसे ब्लड में जाना है। ब्लड किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। इज इट क्लियर? सो अब यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं स्टमक में, जो फर्दर फूड को और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, एंड देयर इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है स्टमक में, HCl। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? इट किल द जर्म्स। ये जर्म्स को किल करता है जो फूड में होते हैं। ठीक है, इट किल्स द जर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड। ये जर्म्स को किल करता है विच आर प्रेजेंट इन द फूड। अब यहां फूड स्मूथ पेस्ट बन जाता है फूड का। जब आप लोग को याद है, जब माउस से नीचे आया था तो हमने उस समय वर्ड यूज किया था सेमी सॉलिड पेस्ट। सेमी सॉलिड पेस्ट वर्ड यूज किया था। लेकिन अब जो स्टमक में 3-4 आवर्स के बाद नाउ द फूड इज मूविंग टू अ हाईली क्वाइल्ड ट्यूब। हाईली क्वाइल्ड ट्यूब इसलिए बोला, ये सबसे बड़ी ट्यूब है, 20 फीट इन लेंथ, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूब है और इसकी लेंथ 20 फीट अप्रॉक्सीमेटली है। इज इट क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे स्टमक के बाद न्यू वर्ड आया। न्यू वर्ड क्या आया?
स्मूथ पेस्ट। अब यहां जो फूड चेंज हो गया, फूड टर्न इनटू अ स्मूथ पेस्ट। नाउ फ्रॉम द स्टमक इट मूव्स इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक से ये कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, नाउ जो ऑब्जर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, ऑब्जर्प्शन मीन्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड सबसे ज्यादा ये होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इज इट क्लियर? और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मैंने बताया था 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं लीवर एंड वन इज नोन एज पेनक्रियास। दे आल्सो सिक्रेट जूसेस। लीवर आपको देगा बाइल जूस, लीवर बाइल जूस देगा, एंड और पेनक्रियास आपको देगा पेनक्रेटिक जूस। ठीक है, एंड दीज जूस आर सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पेनक्रियास और लीवर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और ये फर्दर फूड को ब्रेक करते हैं और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ हम बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली क्या होते हैं, विलाई, VILLI, विलाई, जिसको हमने क्या बोला, विलाई मतलब नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इज इट क्लियर? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ये क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। और दैट इज द रीजन सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ ये विलाई है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स किस में मिक्स हो जाएंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। एंड वी नो दैट ब्लड इज सर्कुलेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, so that every part of the body get energy to perform different types of function। ठीक है, अब ये यहां तक हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन भी डिस्कस कर लिया, अब आगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां से फूड आपका गया लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर? द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी जो ट्यूब्स है ये थोड़ी ब्रॉड है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी है ये। और द लेंथ ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन कितनी दी है बेटा, 5 फीट इन लेंथ है ये, ठीक है। और अब यहाँ क्या होता है, फूड के समय जो जहाँ पे किस चीज का ऑब्जॉर्प्शन होता है, क्या चीज ऑब्जॉर्व होती है, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, वाटर और सॉल्ट यहाँ ऑब्जॉर्व होते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसकी अब हमारे बॉडी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सो अनडाइजेस्टेड फूड, नाउ अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द एनस,
from here the food comes out from the body in the form of feces. Okay, thank you student.